Hello, everyone, and welcome to My Fingerg's podcast. I am very happy to introduce you to Sir Viral Bhatt. Viral Bhatt is a certified financial planner and founder of Money Mantra. Sir has more than 20 years of experience into financial domain, and Sir का एक बहुत genuine mission है, which is very impressive personally for me. Sir has taken up the mission of educating or spreading financial education across India, and this he has been doing really with lot of sincerity. Sir has been writing articles in very prestigious print dailies like Economic Times, Business Standards, and has also featured on CNBC Awaaz or and Z Business channels as well. And apart from that, Sir is traveling across India to spread financial education. Sir का कहना है कि with financial education you can empower a normal human being, and a normal human being, if empowered financially, as far as financial education is concerned, if they are empowered financially, they can contribute to our country in much bigger way, and as a country it will have a different positive impact, and that's a very good mission, and I really appreciate that. So I welcome Sir Viral Bhatt today for our podcast. Thank you, sir. Thank you for being there with us. Yes. So let me start, by asking you, like, what made you to get into, from a corporate world to an entrepreneurial journey? First of all, thank you, Sachin, for having me today. It is my privilege also that you invite me, and we are discussing about our life, our things, what we do in a day-to-day out. It's very much important that at least right message should go to the audience. So thank you for that. Right. So my first and most important question to you, Right. which I'm personally curious to know is, what made you switch from corporate world to an entrepreneurial world? Because the journey is not very easy. A lot of people don't make that shift from a stable corporate job to an entrepreneurial world. See, to be very frank, Sachin, पहले तो आई एम अ गुजराती, राइट? Yes. तो हाँ. गुजराती के खून में होता है कि खुद का कुछ करना है, खुद का Right. बिजनेस करना है एंड ऑल. बट हैविंग सेड दैट, see, we are into a personal finance industry, or when I have started my corporate world in the year 2007, precisely, into this particular industry, I started my career with a company called Bajaj Capital, and Bajaj Capital, and then I worked with Carvey Wealth as well. So two corporate jobs, and वहाँ पे I observed that हम जहाँ पे है, जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वो इंडस्ट्री में मिस सेलिंग बहुत होती है, राइट? एंड मिस सेलिंग होती है बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. एंड मिस सेलिंग कैसे होती है? सो कहीं ना कहीं टारगेट्स होते हैं, कहीं ना कहीं मिस इंफॉर्मेशन होने की वजह से जो मैसेज कन्वे करना होता है, जो प्लानिंग करनी रहती है क्लाइंट्स के पैसों के साथ, राइट, वो कहीं ना कहीं इन अ राइट डायरेक्शन मुझे दिखी नहीं होते हुए. सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इट शुड बी अ पर्सन टू पर्सन डिस्कशन, वेयर जहाँ पे I can understand holistically that particular person, and I can guide him or her in a better way. Corporate world में एक चीज definitely, as you mentioned that एक कंफर्ट होता है. एवरी मंथ एक पर्टिकुलर सैलरी आती है, एंड जो हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है और वही हम करते हैं. बट एक इंडिपेंडेंट होने की वजह से, एक खुद का एक सेटअप होने की वजह से एक फ्रीडम होती है, और जिस तरह से क्लाइंट को हमको उसके कंसर्न्स को देखकर उसको सेंटर स्टेज में रखकर जब हम काम करते हैं और बात करते हैं, और उनको एक्विजिशन कह लो या एक ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो हम पूरा एक जर्नी हम करते हैं, मुझे तब लगा कि डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट अगर मैं होता हूँ, मेरे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में अगर मैं करता हूँ, तो डेफिनेटली सभी के लिए अच्छा होगा. फॉर मी तो डेफिनेटली एक फ्रीडम होगी, बट क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके जो कंसर्न्स हैं, राइट वे में, राइट इंफॉर्मेशन, नॉट टू मिससेल एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसकी कंसर्न्स को ध्यान में रखकर मैं सही से कर सकता हूँ. मेरे को सर आपका बात सुन के आई फील दैट कोर एट द कोर आपको कस्टमर का
जो इमोशनल आपका कनेक्ट है कस्टमर को स्पेशली राइट गाइडेंस करने में, दैट इज एट अ वेरी हाई प्रायोरिटी फॉर यू इन दिस प्रैक्टिस। और मेरे को लग रहा है कि आई लॉट ऑफ एडवाइजर्स आर वेरी टेक्निकल। मैं जब अगर ये क्वेश्चन पूछूंगा और उनको कोर में पूछूंगा तो उनको लगता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट आर द कोर फंडामेंटल्स ऑफ देयर बिजनेस। बट यहाँ पर आप बोल रहे हो कि कस्टमर्स का इमोशन, कस्टमर्स के जो सेंट्रिसिटी है, that is at the core, and that's very very important. As an individual advisor and as an individual planner, this makes all the difference. Fantastic. So sir, on the same consumer part of it, let me ask you, I want to know actually, अगर customer angle से पूछा जाए तो why customer needs a financial advice or a financial advisor, or why customers actually buy a financial product? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जब आप ये क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर कहूँ तो देर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन, सो मेनी सोशल मीडिया, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द end consumer and customer, and but still why he or she needs a financial advisor. See, I always feel that in terms of whenever we are talking about money, so money कैसा होता है कि मनी के बारे में अगर हम जब सोचे तो आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो वो डिसीजन मेकिंग आपके लिए कितना सही है वो आप, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप जज नहीं कर सकते। राइट? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत से बायसेस होते हैं और उसको हम कहते हैं बिहेवियरल बायसेस। राइट? जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी थॉट प्रोसेस एक पर्टिकुलरली ऐसा है कि मैं क्लाइंट को सेंटर स्टेज पे रखता हूँ और उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करता हूँ। और पर्सनली मुझे तो हमेशा एक ये बिहेवियरल फाइनेंस मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेटली पैसों, लोगों के पैसे तो मैनेज करते ही हैं, बट लोगों के पैसों के मैनेज करने से पहले उसका बिहेवियर मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? मुझे लगता है कि ये जो बिहेवियरली लोगों को समझना और उसको, उसके बायसिस को तोड़ना, राइट, पूरा तो हम कभी भी नहीं तोड़ सकते, बट टू द सम एक्सटेंट अगर हम उसको राइट डायरेक्शन दे सके, क्योंकि सी एज अ प्रोफेशन हम बहुत लोगों को मिलते हैं। राइट? हम इतने सालों में, अगर मैं कहूं, मैं नंबर तो नहीं दे सकता, बट मैं कितने सारे लोगों को मिल चुका हूं और सभी के बिहेवियर, सभी के नेचर में डिफरेंट डिफरेंट हमको चीजें दिखती है। राइट? इट इज वेरी सब्जेक्टिव। जब हमको वो एक्सपीरियंस है, अगर मैं कहता हूं कि अगर वो हमने उसको उसके ऊपर टाइम दिया है, टाइम स्पेंड किया है, राइट, तो बिहेवियरली उनके साथ एक कोई हैंड होल्डिंग करने वाला बहुत ही जरूरी है। और अगर इफ वी आर इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओनली डे इन डे आउट, राइट, इट्स अवर बिजनेस बोलो या इट्स अवर वर्क बोलो, इट्स अवर ड्यूटी बोलो, मैं सही तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ और फिर ही मैं उसको ये जर्नी में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन देता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। आप जो बोल रहे हो कि एडवाइजर इंपॉर्टेंट है बिकॉज कस्टमर का बिहेवियर मैनेज करने में मार्केट तो अपने आप मैनेज हो जाता है, लेकिन वो बिहेवियर के एस्पेक्ट की वजह से बहुत बार दे रॉन्ग टाइम द मार्केट और दे क्विट और पैनिक मोड में आकर। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसके लिए एक एडवाइजर होना, स्पेशली जो उनके इमोशंस को समझे, जो उनका उनको पूरी तरह समझे, एंड आई एम श्योर एज अ सीएफपी आप अपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले पूरी तरह समझते हो ऑल द एस्पेक्ट 360 डिग्री, और उसके बाद एज एन एडवाइजर यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू हैंडल योर क्लाइंट्स। आई थिंक, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लाइंट को ये समझना चाहिए कि मेरे को मेंटर चाहिए। फाइनेंशियल जर्नी को मेरे को पूरा जाने के लिए यू नीड अ मेंटर, एंड दैट्स वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवाइजर कम्स इनटू पिक्चर। मेंटर डेफिनेटली चाहिए। मेंटर के साथ थोड़ा सा मैं इसको कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ, क्योंकि कोच जो होता है, अगर मैं सपोज क्रिकेट की मैं बात करूं तो 11 लोग खेलते हैं, राइट? 11 में से उसके सामने कम से कम 25-30 क्रिकेटर्स होंगे, तो सभी के साथ इंडिविजुअली भी वो इंटरेक्ट करता होगा। राइट? तो कोच को पता है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है। राइट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मैं कहूंगा कि मैं अगर कोई मेरे पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए मैं उसका कोच हूं,
तो मैं फाइनेंशियल कोच हूँ कि जिसकी मैं पूरी फाइनेंसिस समझने की कोशिश करता हूँ, और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं उसको कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। राइट राइट राइट। और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बिलीव मी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो सर, एक बात, जब मार्केट्स, अभी तो मैंने थोड़ा मार्केट डाउन भी है, जब मार्केट अप डाउन होते हैं, तो व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस यू गिव टू योर क्लाइंट? देखिए, जो ऐसा कह सकते हैं कि जो काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो सी मैं मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूं सचिन, तो एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और हमारे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री में, जब हम डे टू डे बेसिस पे क्लाइंट के साथ बात करते हैं, तो जब हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं, तो कुछ एक एक्सपेक्टेशन सेट करके ही डेफिनेटली हमको आगे बढ़ना चाहिए। राइट राइट राइट। बट प्रॉब्लम, दिक्कत ये आती है, हमने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, ठीक है, वो जब, क्योंकि देखिए उनके दिमाग में एक होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, राइट? राइट तो राइट। उसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ। हालांकि हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, किस तरह से मार्केट होता है, किस तरह से रिटर्न मिलता है, किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से 5 स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, सारी चीजें हम बताते हैं। बट उनके दिमाग में होता है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स होता है, राइट? तो जब मार्केट नीचे जाता है तो डेफिनेटली उनको कंसर्न्स आते हैं। तो अगर जब हम एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन सेट को कहीं ना कहीं अगर हम उसको डॉक्यूमेंटेड करके रखते हैं, तो जब उनको पैनिक आता है, तभी वापस से वो यस। बातों को हम उसको याद दिला सके, बता सके कि हमने क्या बात की थी और किस तरह से होता है। और अगर मार्केट के बारे में बात करें, मार्केट के सामने अगर कंसर्न्स उनके आते हैं, तो हम डेफिनेटली उनको वेरियस टच बेस करवा सकते हैं, जहां पे उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मार्केट नीचे जाता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, राइट? हम पर्सन बिहेवियर की बात करते थे, तो हम मार्केट के बिहेवियर की भी बात कर सकते हैं। और इसमें कैसे आपको, क्योंकि देखिए मुझे हमेशा एक ऐसा लगता है सचिन, शायद से ये जो बात है वो आपके आंसर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, या तो जब पर्टिकुलर पर्सन की कोई भी चीजों को बारे में बात करते हैं, तो हम फाइनेंशियल गोल के बारे में बात करते हैं। तो क्या फाइनेंशियल गोल आपका आ गया है, राइट? अगर आप अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न रखते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, और आपका फाइनेंशियल गोल आने वाले 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में है, राइट? तो आपको फिर मार्केट से डरने की बात नहीं आती है, मार्केट से कंसर्न्स आपको नहीं आने चाहिए, राइट? तो आपको, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन्होंने आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशन सेट की है, और आप किस वजह से आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो जो वजह, यानी जो फाइनेंशियल गोल है, वो अगर दूर है, नजदीक नहीं है, और मार्केट के बिहेवियर को आप ने सही से उसको समझाया है, और अब वो समझे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आनी चाहिए ये सारे फेजेस में। एब्सोल्युटली राइट। आपने एक जेम ऑफ एडवाइस दिया सर, एंड ऑल द एडवाइजर्स हु आर वाचिंग दिस टुडे, आप इसको पूरा थंब रूल बोल के समझ लेना। मार्केट अप एंड डाउन हो जाएंगे, जैसे सर ने बोला है। उनको, अगर इफ यू डॉक्यूमेंट योर क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, in that volatile phase, you just show them that document and they will be back on track. एक्चुअली सचिन, Fantastic. वो सचिन, हम कहते हैं ना हमेशा, ये भी एनालॉजी देते हैं कि, हाँ, और ये तो डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने सुनी ही होगी बहुत बार, और कि भाई, डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड yes. टाइम इन द मार्केट, राइट? तो Yes, ये yes. जो टाइमिंग की बात करते हैं ना, डेफिनेटली दोज हु आर इनटू टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, लेवल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक सेगमेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, हैंड होल्डिंग, ये सब चीजें पहले समझनी चाहिए लोगों को कि एग्जैक्टली किस तरह से होता है, किस तरह से वर्क करता है, और उसको कैसे अप्रोच किया जाए। राइट राइट। चलो, कमिंग टू द गोल नाउ, मतलब आपने गोल मैनेजमेंट का टॉपिक छेड़ा है अभी। और हम लोग वेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का। ओके, उसको आप, उस पर आपको क्लाइंट को क्या एडवाइस देना है? देखिए, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि लोग आते हैं, यानी कोई भी पर्सन आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है,
राइट। और मैं पर्सनली या मेरी फर्म कह दो, हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले जो एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, यस। राइट। रिस्क मैनेजमेंट में तीन एस्पेक्ट होते हैं। कंटीजेंसी प्लानिंग होती है, राइट। राइट। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, और यस। तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। राइट। तो राइट। इन्वेस्टमेंट के पहले हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। और रिस्क मैनेज करना, अ, अभी उनके दिमाग में पैसों का रिस्क होता है, राइट, कि पैसों मैं जहां पे इन्वेस्ट करता हूं उसका कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट कर सकूं। बट खुद का रिस्क मैनेजमेंट, एज अ पर्सन का रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं सोचते हैं। तो पर्सन का रिस्क मैनेजमेंट हम लाइफ इंश्योरेंस कितना होना, कितना एडिक्वेट होना, राइट, ह्यूमन लाइफ कैलकुलेशन, टर्म इंश्योरेंस, यस। राइट, और फिर यस। हेल्थ इंश्योरेंस में एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना, अपार्ट हम्म। फ्रॉम योर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपका एक अलग से भी सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस होना, हम्म। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना, आपके हेरिडिटी में आपके अगर फैमिली मेंबर्स में किसी को कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस ऑलरेडी है, तो आपको भी वो क्रिटिकल इलनेस के प्रोडक्ट आपके भी बास्केट में होना। तो ये सब बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर योर एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट ही सही से नहीं किया है, आपने अगर वो जो एक कहता है ना, एक बॉर्डर अगर आप बना के नहीं रखते हो विद इन योर सेल्फ, कि भाई अगर ये रिस्क आ गया मेरे लाइफ में, राइट, तो मेरा क्या होगा, यानी मेरे फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द most important and crucial aspect of your financial planning. Fantastic, fantastic. And this is all the audience who are listening to this. ये बहुत बहुत important है. All the top advisors, committed professional advisors, always do this. What sir has said. I've interacted with a lot of them across India. They have always said that before investment, you need to ensure that risk management is taken care of. And this has to be one very important piece of advice for all of you who are watching this today. Sir, टेकिंग दिस लिटिल अहेड, रिटायरमेंट गोल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है? मैं इसके थोड़ा एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं, जस्ट ड्रॉ अ रेफरेंस पॉइंट. Sure. I had seen a research paper where it was said that around 50% plus parents in India, spend their retirement fund, okay, for various things, और child education के लिए, और किसी के लिए, मतलब in between, उनका जो retirement fund होता है, lot of people have retirement fund, उनका जो PF जो NPS वगैरह चलता है, especially for the salaried people, but वो fund आते आते when the requirement होता है, वो fund रहता नहीं उनके पास. एज ए एडवाइजर आप कैसे, मतलब उसको देखते हो? देखिए, हमेशा मैं ये कहता हूँ, आई ऑलवेज टेल टू माय क्लाइंट्स एज वेल, whenever I got the opportunity in any particular event or stage or whatever, कि सी आपको आपके लाइफ में फॉर एनी पर्टिकुलर गोल्स, राइट, मे बी चाइल्ड एजुकेशन, राइट, मे बी children's marriage, maybe house renovation, or for any other goal apart from retirement, आपके पास कहीं ना कहीं आपको लोन मिल जाएगी, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं लोन मिल जाएगी। बट जब आप रिटायर्ड होने जाओगे, जब आप रिटायर हो रहे हो एट द एज ऑफ 55, 60, 65, ठीक है, आपको कोई लोन देने नहीं आएगा, राइट। आपका इन्वेस्टमेंट ही वो टाइम पे आपका लोन है, राइट। योर एसेट इज ओनली योर लायबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यानी आपको वहां से वो फंडिंग करना है, आपको पैसा निकालना है, तो वो फंड आपके पैसे ही आपको आपको काम आएंगे, जो आपने बचाए हैं, जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। तो रिटायरमेंट यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो मोस्ट इग्नोरेंट पार्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है जिस तरह से बाकी के कंट्रीज में होती है, राइट। डेफिनेटली हमको खुद को ही हमारा रिटायरमेंट प्लान करना है कि मैं अगर सपोज 55 या 60 पे मैं रिटायर होता हूं, तो मेरे जो आने वाले 20-30 साल है, वो मैं कैसे उसको फंड करूंगा। और वो फंड करने के लिए डेफिनेटली मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी ही है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैंडेटरीली कंपलसरी मुझे ये एस्पेक्ट को तो डेफिनेटली इग्नोर नहीं ही करना है। कुछ इस पर टिप्स दोगे सर? समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग, अभी जो 35 इयर्स 35 इयर्स के जो लोग हैं, जस्ट गॉट इनटू रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैरिज एंड देयर फर्स्ट किड, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट बहुत अर्ली है हमारे लिए, तो आप कुछ उनको एडवाइस दे सकते हो, कुछ टिप्स दे सकते हो? देखिए, ये अर्ली वाला है ना प्रॉब्लम, जो अभी जो जनरेशन आ रही है, दोज हु स्टार्टेड वर्किंग
in their 20s, maybe 2024 या 26 28 Yes. में अगर Yes. उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, सो इतना दूर का सोचना वो उनके दिमाग में नहीं आता है। नहीं आता है। अरे यार, मैं हूं 24 का 26 का और आप बात कर रहे हो 60 साल की, इतना दूर का किसने सोचा है? राइट। और दूसरा एक पेन पॉइंट वहां पे है कि वो दूर का तो नहीं सोचते, नजदीक का जल्दी सोचते हैं और जल्दी का स्पेंड करने में सोचते हैं। सी, स्पेंड करने में कोई गलत बात नहीं है, डेफिनेटली इफ दे आर अर्निंग गुड, आपको स्पेंडिंग करना है, बट वो स्पेंडिंग और ओवर स्पेंडिंग, राइट, उसमें वो फर्क नहीं पता चलता है। तो पहले तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका एक पार्ट डिसाइड करना है कि आपके इनकम का कितना पार्ट आपको शेल आउट करना है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और वो पर्टिकुलर पार्ट को आपको स्ट्रेट अवे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दो में डिवाइड करना है, राइट। फिर जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे, इन्वेस्टमेंट को समझोगे, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड को समझोगे और इम्पोर्टेंस समझोगे, राइट, और आपके और भी फाइनेंशियल गोल्स आपको फिर ध्यान में आते जाएंगे, फिर आप शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ये स्ट्रेट अवे ये 3 बकेट में आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को करना है। ना आपको शॉर्ट टर्म को इग्नोर करना है, ना आपको लॉन्ग टर्म को इग्नोर करना है। एटलीस्ट आपका जो एक इनकम का जो पार्ट है, राइट, और या तो आप उसको सेविंग का पार्ट भी आप ले सकते हो, वो आपको पार्ट लेकर आपको एटलीस्ट एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में हम हमेशा कहते हैं, राइट, वो स्ट्रेटेजी से आपको धीरे 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 करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। कुछ सर एक परसेंटेज दैट यू सजेस्ट, जो पार्ट बोल रहे हो, एक स्टैंडर्ड मिनिमम परसेंटेज? देखिए, बहुत सारे रूल्स हम बात करते हैं हमारे लाइफ में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेटली इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ऑल्दो कि पर्सनल फाइनेंस सब्जेक्ट ही एक सब्जेक्टिव है, बट स्टिल जैसे आपने कहा कि एक स्टैंडर्ड रूल होता है, तो एक 30-30-30 वाला रूल हमेशा एक पॉपुलर हुआ है, और पहले उसको अगर आप समझोगे तो आप एटलीस्ट वो एक स्टार्ट ले सकते हो, राइट। फिर जब भी आपका सब्जेक्टिव जो भी आपके कंसर्न्स होंगे उसको एड्रेस कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स। 30-30-30 यानी क्या कि पहले 30 आपके जो नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस है, राइट, वो आप 30% में आप, यानी आप इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज तो 30 रुपया 30 रुपीज आप आपके नॉर्मल रेगुलर एक्सपेंसेस को आप कैटर करिए। फिर जो 30 रुपीज है, क्योंकि आप इफ यू आर इनटू 20s और 30s तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लोन्स भी आएगी, राइट, ईएमआईज आएंगे, तो 30 रुपीज जो, और 30 रुपीज का जो बकेट है वो आप आपके जो लोन्स है, लाइबिलिटीज के लिए आप सेट असाइड रख सकते हो। फिर बचे आपके 40 रुपीज, 60 हो गए, 40 बचे, तो 40 में से जो 30 वाला पार्ट है वो आपका इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए, राइट, और जो 10 है वो आपके कंटीजेंसी में जाना चाहिए कि भाई 10 रुपया है वो कंटीजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आती है उसको करने के लिए। तो जो वो ये 30 वाला पार्ट है उसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स आ गए, आपके इंश्योरेंस आ गए, सारे कुछ चीजें वो 30 में आप कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू दैट 30-30-30 रूल कहते हैं हम उसको, अकॉर्डिंगली आप आपका ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस प्लान कर सकते हो। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है सर, इमरजेंसी कंटीजेंसी। बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं होते। सर ने जैसा एडवाइस दिया है, everyone should allocate some portion of their monthly income towards contingency और emergency fund। एक बार वो emergency fund prepared हो जाता है, around 6 to 12 months of your income हो जाता है, then probably you'll have to slow down on that, but उतना तो आपको build up करना है। और ये बहुत बहुत important aspect है of financial planning overall और financial stability overall। Absolutely. Fantastic, sir. Thank you for this lovely inputs. Audience definitely would love this. Sir, कुछ अभी एडवाइजर के लिए ना, अभी जो हुआ स्टार्टिंग न्यू, लॉट ऑफ एडवाइजर्स आर स्टार्टिंग न्यू, आर गोइंग टू वॉच दिस पॉडकास्ट फॉर श्योर। उनके लिए वन पीस ऑफ एडवाइस सी, जब आप पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री में आते हो तो नेचुरली ऐसा हो, आप आते हो, आप एंटर करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको वो इंडस्ट्री में पोटेंशियल दिखता है, राइट। डेफिनेटली आपको पैसा तो दिखता ही दिखता है, नो डाउट अबाउट इट, बट पैसा दिखता है, पोटेंशियल दिखता है, फ्यूचर दिखता है कि भाई ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसमें अगर मैं रहता हूँ, आता हूँ, काम करता हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा। बट ये एक
इंडस्ट्री हम्म, ऐसी है जहां पे आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट? यू हैव टू जनरेट द हम्म, क्लाइंट, यू हैव टू क्रिएट द क्लाइंट, राइट? तो ही आपका एग्जिस्टेंस होगा, राइट? तो जो क्लाइंट है, हम्म, वो क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच, कि भाई मैं जो भी करूंगा मैं उसको सेंटर स्टेज पे रखूंगा हम्म, और उसके कंसर्न्स को एड्रेस करूंगा। हम्म, और अगर उसके कंसर्न्स को एड्रेस करूंगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा, उसके वर्ल्ड में जाकर उसके कंसर्न्स को ध्यान में रखकर मैं अगर जो भी इन्वेस्टमेंट्स करवाना है, जो भी इंश्योरेंस करवाना है, जो भी प्लानिंग करवानी है, अगर मैं क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच से जो भी करता हूं, तो डेफिनेटली मेरे लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा, बट मेरे लिए भी अच्छा होगा। और मेरी जो रिलेशनशिप है, मेरी जो उसके साथ बॉन्डिंग है फाइनेंशियली, वो काफी स्ट्रांग हो सकती है। ट्रू। और इसी पॉइंट पर सर, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं बट बहुत कम सीएफपी है इंडिया में। हम्म। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो आप हम्म। खुद देखो, बहुत कम सीएफपी है इंडिया में। क्या लगता है, मतलब जो वो पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, ओके, बहुत सारे लोग ये करियर को पार्ट टाइम लेकर स्टार्ट करते हैं। There are very few like you who have worked at a very senior level in top corporates, try to come and start their entrepreneurial journey in this field. बहुत कम होते हैं। हम्म। तो जो नया स्टार्ट कर रहा है उनके लिए मतलब ये फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस, अपस्किलिंग कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपके पास अगर ये अपस्किलिंग आप में उतना क्या कह सकते हैं उसको, जितनी आपको उसकी चाहत नहीं है कि वो मैं हम्म, समझू, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि सी ये इंडस्ट्री इतनी इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, राइट? अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे, आप हम्म, इंफॉर्मेशन नहीं लोगे, डे टू डे बेसिस पे नहीं लोगे, तो आपको एग्जिस्टेंस होना आपका ये इंडस्ट्री में बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? क्योंकि एज आई मेंशन, ये बहुत ही इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। हर हम्म, दिन कुछ ना कुछ नया, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए रेगुलेशंस, नए नए कंप्लायंसेस, राइट? हम्म, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पकड़ हम्म, के रखेंगे। हम्म, बट आपको अगर उसके साथ पकड़ के रहना है, तो आपको वेरियस वेरियस पॉइंट पर आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, नए नए सर्टिफिकेशंस आते होंगे, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, राइट? हम्म, हम्म, तो हम्म, इसका मुझे नहीं लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो भी मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, हम्म, क्योंकि यू हम्म, नेवर नो हम्म, आपको आपके क्लाइंट क्या पूछेंगे, आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जैसे मैं हम्म, शुरू में कह रहा था सचिन, कि हम्म, हम जब क्लाइंट को समझने की कोशिश करते हैं, तब एक एक्सपेक्टेशन उनके साथ सेट करनी है। हम्म, तो हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली, इन टर्म्स एब्सोल्युटली। ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो वो सब चीज करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कुछ एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, हम्म, कुछ एक मेथड होनी चाहिए, कुछ हम्म, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि हम्म, कैसे मैं अप्रोच करूंगा क्लाइंट को, किस हम्म, तरह से मैं अप्रोच करूंगा। हम्म, सिर्फ सेल्स स्किल से सब कुछ नहीं हो जाता है। हम्म, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट हम्म, मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो आपको सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, आपको अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन, सारी चीजों की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी ही। ट्रू, ट्रू। और मैं आपका देख नो आई नो योर प्रोफाइल। तो मैं देखा हूँ आपके कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग सीएफपी एंड प्रैक्टिसिंग नो द सर्टिफिकेशन ऑफ जो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस करके भी, उसके अलावा भी यू हैव क्वालिफाइड योरसेल्फ इन एनएसएम, रिटायरमेंट सर्टिफिकेशन आपने किया, डेरिवेटिव्स और कैपिटल मार्केट का सर्टिफिकेशन आपने किया। आई सी दैट यू कीप अपग्रेडिंग, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे एडवाइजर जो देख रहे हैं, उनको तो ये गार्ड बनना चाहिए कि मतलब यस। इस प्रैक्टिस में ये मेरा इंपॉर्टेंट चीज होगा। देखिए, ठीक है, लेट्स बहुत बार क्या होता है सचिन, मुझे ना बहुत लोग मिलते हैं हाँ, कि यार मैं तो ये करता नहीं हूँ, यानी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में मेरे क्लाइंट्स को देता नहीं हूँ, राइट? हम्म, या तो मैं करना नहीं चाहता, तो हाँ, मैं क्यों इसके बारे में जानूं, क्यों मैं इसके बारे में राइट, समझूं? राइट, एक्चुअली अपने इंडस्ट्री में है ना, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने ये भी किया है, वो भी किया है। हाँ, अभी अगर मुझे वो नहीं करना है, फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं करना है, उसके रीजन क्या हम्म, है, राइट? और अगर मुझे क्लाइंट को नहीं भी देना है वो, या क्लाइंट को वो सूट भी नहीं करता होगा, तो मुझे हम्म, उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि मैं उसको हम्म, क्यों ना बोल रहा हूँ। हम्म, उतने में उतनी तो मेरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो मैं हम्म, करता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली उसको अच्छे से कन्वे कर दूंगा, राइट, बट मुझे जो राइट, नहीं करना है, वो भी यस, उसको समझाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस, क्यों नहीं करना। तो यस, इसके लिए अपडेटेड रहना, इसके लिए जो ये चेंजिंग
जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसमें समझना। मैं अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करता हूँ तो मैं डेरिवेटिव्स नहीं समझूंगा, ऐसा तो नहीं है। मुझे डेफिनेटली डेरिवेटिव समझना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए क्योंकि मुझे क्यों नहीं करना है। उसका ओवरऑल इम्पैक्ट है, मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल जो ऊपर नीचे होता है इंडस्ट्री में, उसका ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में इम्पैक्ट है ही है। Okay, and that's the reason you need to know it. यस, Absolutely. No, this is the right way to put it or put forth across. परफेक्ट परफेक्ट। Sir, three books that you can advise. अभी हम लोग we are talking about knowledge and upgrading. So तीन book आप recommend कर सकते हो advisors के लिए और also consumers के लिए, which will help them to upgrade themselves. टू बी वेरी फ्रैंक सचिन, मैं इतना बुक मैं नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, ओके मैं ओके। बहुत ही कम बुक पढ़ता हूँ। और मैंने जितने भी पढ़ी है तो हाँ, उसमें मुझे पर्सनली योगिक वेल्थ, गौरव ओके मशरूवाला, जो ओके। हमारे, ऐसा कह सकते हो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए एक मेंटोर है। अ, अच्छा अच्छा। वो उनकी जो बुक है उससे मुझे बिहेवियरली और एक जो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी है वो इन अ ट्रू सेंस अगर आपको यस। आपके क्लाइंट्स को कन्वे करना है तो एक ये योगिक वेल्थ जो बुक है वो डेफिनेटली गुड। आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए और पढ़नी ग्रेट चाहिए। ग्रेट और ग्रेट। अमित त्रिवेदी एक हाँ। ऐसे ही हमारे मेरे काफी अच्छे मित्र हैं वो तो, उनके भी जो बुक्स उन्होंने लिखी है वो भी एक बार रेफर करने चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल है, सिचुएशन बेस्ड है। तो ये पर्टिकुलर दो लोगों की तो डेफिनेटली बुक्स एक बार आपको देखनी चाहिए कि जो भी जरूर उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो जरूर। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है। और क्योंकि डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट मैटर है उसके अंदर, बट वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। कल्पेश आचार करके भी एक मेरे ओके। काफी अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने भी क्रिकेट के एनोलॉजी, मूवीज के एनोलॉजी को सिचुएशन बेस्ड मनी के साथ कनेक्ट किया है। तो ये भी काफी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो हमारे इंडस्ट्री में जितने भी जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उन्होंने भी बुक्स लिखी है तो उनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं वहां पे दिखाई देता है। एक्सपीरियंस भी झलक में आता है कि कैसे आप ओवरऑल चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो और कर सकते हो। राइट राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकमेंडेशंस। सर, एक ट्रेंड आगे चल के अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी इज गेटिंग अडॉप्टेड एट बोथ द लेवल। इंडिविजुअली एज एज एन एडवाइजर के लेवल पर हो रहा है, और एज ए क्लाइंट ऑल्सो आर नाउ ऑनलाइन आ रहे हैं, राइट। वो फ्रॉम फिजिकल मोड टू मोर ऑफ ऑनलाइन मोड आ रहे हैं। सो आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एडवाइजर्स एज वेल एज इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स? ये मेरा सबसे कोर सब्जेक्ट है और इट्स वेरी मच क्लोज टू माय हार्ट। जैसे मैंने कहा कि क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए आपके बिहेवियर में और आपके एक्शन में। सिमिलरली टेक्नोलॉजी फर्स्ट, ये मैं अप्रोच मैंने मेरे प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट किया है विद द क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच फॉर श्योर, कि जो भी मैं कर रहा हूं और जो भी मैं करूंगा वो सारा एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली उसके बिना आप सरवाइव नहीं हो पाओगे। क्योंकि ऐसे भी मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं कि इफ यू आर नॉट अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी देन आपके साथ क्लाइंट आप नहीं आएगा आपके साथ, राइट। क्योंकि ये जो पेस है टेक्नोलॉजी का वो इतना चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है, जिसमें आप एक जस्ट एग्जांपल अगर मुझे देना है तो मैं जेरोधा का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं यहाँ पे, राइट। क्योंकि उन्होंने उन वो कोई रेकमेंडेशन नहीं देते हैं स्टॉक्स के, उन्होंने जो एक ऐप बनाया है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इतना सॉलिड बनाया है जिससे एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में कितने सारे क्लाइंट्स उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं, राइट। तो यहां से मैं एक अगर सिर्फ रिलेट करूं कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे पास भी जो एक डिजिटल अप्रोच होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अप्रोच होना चाहिए। मैं तीन चीजों में उसको मैं रखता हूं हमेशा: बिजनेस डेवलपमेंट, क्लाइंट सर्विसिंग, राइट, और मार्केटिंग, राइट। ये तीनों में आपका टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट आना चाहिए जिससे आपको स्केल अप होने में, फास्ट स्केल अप होने में आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगा ही होगा। So technology, as you rightly pointed out,
is very important play for advisors as per you, and this is Right. a fact. I also exactly believe in that. Sir, future of financial advising in India क्या होगा? देखिए, बहुत बार ऐसा बोलते हैं सचिन सब लोग कि रोबो एडवाइजर्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी चीजें हो रही है, कॉम्पिटिशन्स हैं, वो तो होगी ही होगी। मैं है ना हमेशा ये मेरे फेलो फ्रेंड्स जो है उनके साथ डिस्कस करता हूँ या कोई नया इंडस्ट्री में आता है। हमारी इंडस्ट्री है ना एक समंदर जैसी इंडस्ट्री है, ठीक है? आपको आपका एक आइलैंड बना के रखना है, राइट? आप अगर समंदर अगर है, समंदर बड़ा होता है और आपको एक छोटा सा आइलैंड बनाना है जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है, राइट? तो ये रोबो एडवाइजर आना, डायरेक्ट क्लाइंट्स आना या कॉम्पिटिशन्स आना, ये तो होता ही होगा। बट जैसे शुरू में आपने कहा कि भाई यहाँ पे लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में कितने परसेंटेज पता है, जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है, राइट? प्रोडक्ट वाइज अगर देखें तो म्यूचुअल फंड कितने लोगों को पता है, राइट? तो बहुत ही लंबी मंजिल है हमारे सामने जो हमको काटनी है, राइट? तो उसमें हमको, पर देखो हमारा अप्रोच और हमारी एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? जो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं कवर की ये पूरे डिस्कशन में, तो वो अप्रोच और वो एक्शन के साथ अगर हम काम करते हैं तो फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। बट अगर नेगेटिव माइंडसेट से अगर हम काम करेंगे ना तो सर्वाइवल डिफिकल्ट है। तो पॉजिटिव अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन मैं करूंगा, कर सकता हूं, वो अप्रोच से अगर मैं फ्यूचर में जितना आगे 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 बढ़ता जाऊंगा ना उतना मेरे लिए सही होगा। Constant upgradation and becoming prepared for the future today Right. is the mantra Right. as per you. Fantastic. Perfect. सर, कोई आपका इंस्पिरेशन जो इंडस्ट्री में जो है, आप जिसको फॉलो करते हो, यू गेट इंस्पायर्ड? टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मैं बीइंग आई एम अ मुंबईकर, मैं मुंबई में बैठा हूं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री के लोग जिनके साथ कॉन्स्टेंटली मिलना होता ही रहता है, राइट? तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मैं नहीं कहूंगा, बट जब हम मिलते हैं ऐसे लोग, जो फेलो फ्रेंड्स कहो, फेलो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स कहो, इन इन अ सेंस, तो कहीं ना कहीं सभी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातों में इंस्पायर्ड करते हैं हमें। तो डेफिनेटली कोई एक पर्सन नहीं है, बट यहाँ में मुंबई में रहकर जब हम उनको मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी जर्नी से समझते हैं, उनकी जर्नी से सीखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे काम किया जाए और कैसे क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से सोचा जाए। तो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है, बट कलेक्टिवली जब हम हमारे फेलो इंडस्ट्री के लोगों को मिलते हैं, एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता ही है। फैंटास्टिक, सो कंटिन्यूअसली लर्न करो। राइट। कंटिन्यूअसली ऑन द गो। एक सर, एक क्वेश्चन जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आई नो यू ट्रेवल अ लॉट, यू हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट, इन टर्म्स ऑफ दिस विच यू हैव टेकन ऑन योर ओन सेल्फ ऑफ गोइंग एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन। आप बहुत जगह पर जाते हो फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। टाइम तो सबके पास 24 आवर्स ही है, कैसे मैनेज करते हो टाइम? यहाँ पे लोग मुझे बहुत टाइम बोलते भी है कि आप मल्टीटास्कर हो, कैसे मैनेज कर लेते हो, कैसे करते हो। तो एज मैं देखो उसमें है ना, मैं थोड़ा डिजिटल और टेक्नोलॉजी को बहुत ही कनेक्ट करता हूँ। आप अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, आपको कितना टाइम कहाँ पे देना है, छोटी से छोटी चीज, नोट टेकिंग ऐप से लेकर कैलेंडर मैनेज करना, राइट? तो ये सब चीज अगर आप डिजिटली, आप कह सकते हो ना, उसको आप डेलीगेट कर दो, राइट? चीजों को आप डिजिटल के साथ जोड़ दो, तो आपको आपके पास भी टाइम हो सकता है, आप प्रॉपर एलोकेशन कर सकते हो। क्योंकि देखो हम हमारे फील्ड में हम हमारे क्लाइंट को एसेट एलोकेशन कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो हमारा एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डूइंग द वर्क, यही सारी चीजें हैं कि कैसे मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों में से जोड़ दूं और उसके लिए टाइम निकालूं। क्योंकि अगर मैं उसको प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो सपोज मेरे क्लाइंट्स को मिलना ये एक टाइम, राइट? उनका पोर्टफोलियो मैनेज करना ये एक टाइम, राइट? मैं मीडिया असाइनमेंट्स मेरे है, मुझे आर्टिकल लिखना है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम। तो मैं उसको अगर सही से डिवाइड कर दूं और उसको एक सही तरीके से स्ट्रक्चर में ले लूं तो डेफिनेटली
टाइम मिल ही सकता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकालता, टाइम निकालना पड़ता है और टाइम को एलोकेशन करना पड़ता है। दैट्स द थिंग। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आज बात करते करते सर इतने आपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को छू लिया है। इनफैक्ट so many thumb rules that have come up from this podcast. I am really grateful to you. एक लास्ट आपसे एक चीज पूछना था सर। कुछ 2025 इज जस्ट स्टार्टिंग, जनवरी अभी है। कुछ ऐसा आप एक मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आगे 5 साल 10 साल अभी तक हम लोग का देयर इज अ नाइस यूफोरिया अबाउट इंडियन इकोनॉमी। राइट we are there are so many positives about Indian economy. Right. Indian economy 100% will cross $5 trillion very soon. जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, lot of people are still not investing in India. Lot are hesitant still. उनके लिए सर from the future perspective of what is Indian economy going to be, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और हमारा एज एन, आपने इंडिया के बारे में बात की, तो इंडिया का भी पास्ट देखे और अब हम फ्यूचर देखे और करंट सिचुएशन देखे, सभी कंट्रीज की बात करें तो सभी के अपने अपने एक फेजेस होते हैं, उसके सामने रिएक्ट करने की एक सिचुएशन होती है और एक एक्शन रहती है। सिमिलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमें पेशेंस रखने की आदत हमको होनी चाहिए। जो सब तुरंत होना चाहिए, सब तुरंत हमको जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो बहुत ही गलत है। राइट। अगर ये पेशेंस रखना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले, राइट, या हम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले, तो पेशेंस को सीखना और रखना और उसको समझ के इम्प्लीमेंट लाना, तो वो बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट कर देता है कि भाई जो वरी फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम पेशेंस रखना नहीं जानते हैं। और कोई भी हमारा डे टू डे हमारा काम भी हो या इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें तो पेशेंस नहीं रहता है हमारे से, और हर चीजों में हम इंस्टेंट ढूंढते हैं और इम्पेशेंट होके चीजों को करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो पेशेंस रखकर अगर हम सोचते हैं और करते हैं ना, तो सारी चीजें सही तरीके से हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर। एंटायर माय फिनर्जी की टीम की तरफ से, पर्सनली मेरी तरफ से अ बिग थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस एंड गिविंग सो मेनी इनपुट्स। मतलब आपने जेन्युइनली जो रिक्वायर्ड है एज अ कस्टमर ऑल्सो, मैं आपको फील कर रहा था व्हेन आई वाज डूइंग दिस, एंड आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग जो आपने जो पॉइंट बोले हैं। दोस आर सो important from the consumer psychology when I'm acting like a consumer who is serious in financial planning. बहुत सारे इनपुट्स मेरे को मिले, और जो एडवाइजर देख रहे हैं उनके लिए ये तो बहुत बहुत एक बड़ा ट्रेजर है। अगर उन्होंने ये जो चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई आज, अगर वो फॉलो करते हैं, बिलीव मी, आप मैं बोलता हूँ सब एडवाइजर्स को कि इट विल डेफिनेटली एड बिग वैल्यू टू योर करियर. And sir, thank you so much for sharing all this gems and so many inputs with us. I wish you all the best, and thank you so much. And we will definitely reconnect with you on various aspects. I personally also always discuss so many things with you at a personal level, and your advice is always valuable. So thank you so much from entire My Finergy team. Thank you so much, Viral sir. थैंक यू सचिन, माय प्लेजर ऑलवेज। और अभी तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी तो शुरुआत है, ये राइट। हमें और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, सभी लोगों से सीखना है और समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू। Absolutely. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot.